ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನವನ್ನ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿದ್ದಾವೆ. ರಾಜದಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸೆಂಗೋಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜದಂಡ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗಿದೆ. 21 ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 25 ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿವೆ. TMC ಆಗಿರ್ಬೋದು, DMK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ KCR ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಹೀಗೆ 20 ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 25 ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ 25 ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಗೋಲ್ ರಾಜದಂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚೋಳರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ದಂಡ ಅದು. ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ನಂದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಮೇಲೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯದ ಸಂಕೇತ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ. ಆದಿನಂಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, 20 ಜನ ಆದಿನಂಗಳು. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜದಂಡದ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ, ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಮೇಲೆ, ಸೆಂಗೋಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೆಂಗೋಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರುಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ರಾಜದಂಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತ, ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿತ್ತದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಈಗ संसद भवन लोकार्पणे ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था. और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला, मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था. तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था, राजस्थान का विजिट. देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है, और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं. और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है, उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए, मैं राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी. अच्छा, आपको वहाँ कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी, आपको लगता होगा हाँ यार, ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है. मोदी जी, मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना, वो थी कि जो देश प्रेम है ना, और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा, क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को
बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय हैं। और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है, वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज जो मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया, जो कि वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज जो मुझे बहुत ही दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहाँ जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए? मैंने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ। तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? जी, मोदी जी में एक्टिव हो। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना, ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, ताकि देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्म्य क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी, मैं जरूर करूंगा। ग्यामर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप सब युवा देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचल के लोग इतनी आत्मीयता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। युवा संगम में ग्यामर जी का अनुभव तो बेहतरीन रहा। आइए अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं। विशाखा जी, नमस्कार। सर्वप्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम, और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ, और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था सबसे पहले। तो उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है। तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा, और जब मैंने अप्लाई करा तो मैं एक्साइटेड थी इसमें ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जब मैं वहां से घूम के तमिलनाडु जाके वापस आई, तो वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया, उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया, जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी, आप क्या पढ़ती हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी, आपने किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का। तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना, ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है, तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, वहां जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया, और मुझे बहुत खुशी है। आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? जी, मैं पहली बार गई थी। अच्छा, कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देश के युवा सुन रहे हैं आपको। जी, पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा है। एक-एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। मैंने तमिलनाडु में जाके अच्छे दोस्त बनाए हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया है, वहाँ के लोगों से मिली मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वहाँ पे, वो पहली चीज़ तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरो में जाने का, और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरो में जाएँ। प्लस दूसरी बात सबसे अच्छी थी, वो थी जब हम राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले। तो वो 2 मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफ़ी सही था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में हम हैं एज़ अ यूथ, हमें वो मौका नहीं मिल पाता जो कि युवा संगम के थ्रू मिला है। तो ये काफ़ी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए। बिहार में तो खाने का तरीका अलग है, तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है, जी। तो वो सेट हो गया था पूरी तरह? वहाँ जब हम लोग गए थे तो साउथ इंडियन क्विजीन है वहाँ पे तमिलनाडु में। तो जैसे ही हम लोग गए थे तो वहाँ जाते के साथ हमें डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम, वड़ा, उपमा ये सब सर्व किया गया था। तो पहले जब हमने ट्राई करा
तो दैट वाज टू गुड। वहाँ का खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है। तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे।